मॅडम स्क्रीन शेअर होत नाहीये. हा हा आता होईल सर. नाव चेक. Okay, is everyone ready? Are you ready? Yes, sir. ठीक है. Positive and negative and zero accelerations. Now see here. When the train departures from the stations, what happened to the velocity of the train? ट्रेन स्टेशन से निकल रही है तो वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है और घटती है? क्या होती है? So when the velocity of the object increases continuously, the object is said to have positive acceleration. Got it? Yes. Yes, sir. On the contrary, suppose the train is arriving at the station, क्या होता है velocity को? When the train is arriving at the station, the velocity decreases now. Yes. It has negative acceleration. It has negative acceleration. And when the train moves with the constant velocity, that means there is no change in the velocity, the train has zero accelerations. Got it? Clear? Yes. Yes, sir. Take this screenshot. लीजिए. हो गया? Yes, sir. ये ग्राफ हम बाद में देखेंगे. ग्राफ थोड़े ग्राफ बाद में देखेंगे आपको. ग्राफ हम बाद में देखेंगे. ध्यान में रखो यहाँ पे. Now it is uniform circular motion. What is circular motion? Do you know what is circular motion? You have the ceiling fan in your house, na? है ना? Yes, sir. And it performs the circular motion. Now when the velocity of that fan is constant, it is said to be moving with uniform circular motion. बराबर है ना? अरे when any object moves along the circular path with constant velocity, then it is called uniform circular motion. When the object moves along with the constant fields along the circular path, the motion is called uniform circular motion. By the way, tell me, यहाँ पे when the object completes one round along the circular path, how much is the distance traveled by the object? कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ के ऊपर एक राउंड पूरा करता है, so how much is the distance traveled by the object? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? No, sir. कोई भी सर्कुलर पाथ के ऊपर यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक साइकिल पूरा होने के बाद व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यू? इज इट नॉट इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल? अरे इज इट नॉट इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तनीश, आर यू गेटिंग? No, sir. तनीश, हाँ तनीश जरा माइक ऑन कर, माइक ऑन कर. Yes, sir. तनीश, एक सर्कल है, वो सर्कल के ऊपर आपने एक साइकिल पूरा कर दिया, एक राउंड पूरा कर दिया, तो आपने कितना डिस्टेंस, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया? Yes, 360.
3D 360 मत बोल, 360 डिस्टेंस का वो डिग्रीज है ना। हाँ सरकमफरस इतना ना, वो सर्कल का जो सरकमफरस है उतना ही रहेगा ना। हाँ Yes, सरकमफरस sir. समझता है, सरकमफरस समझता है ना। हम्म So when you complete one round, the distance traveled by you is equal to the circumference ना। यस अभी कोई भी और टाइम, यहाँ पे टाइम लिखा मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफरन्स अपॉन टाइम। नाउ सरकमफरन्स का आपको फॉर्मूला मालूम है, सर्कल के सरकमफरन्स का फॉर्मूला वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr 2πr। और टाइम के लिए हमने रेडियस लेटर यूज किया है स्मॉल टी। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? हो गया? यस सर Yes. Sir. अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन रीड करेगा जरा? शुभम रीड कर। Yes, sir. Newton's first law of motion. An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. Balance force. हाँ बस बस First. बस बस बस। So Newton first law of motion. So everyone knows about the scientist Newton, and he proposed the different laws of motion. The first law we are Yes. studying here. What Newton said, he said that if the object is at rest, it will be in a state of rest unless no external force act on it. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। एग्री एवरीवन? Yes. आपके घर में अभी चलो चेयर है, सो चेयर इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट कब तक? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स, दैट मींस व्हेन यू अनलेस यू लिफ्ट द चेयर ना। Yes. हाँ, उसी तरह से न्यूटन ये भी बोल रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन it will continue to be in the motion unless the external force act on it. यदि भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और जब तक वह उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। समझ रहा है ये स्टेटमेंट आपको? अभी सेकंड स्टेटमेंट समझ रहा है क्या? सेकंड अश्विनी, सेकंड स्टेटमेंट समझ रहा है? फर्स्ट तो इजी है समझने के लिए। फर्स्ट क्या है? When the object is in the state of rest, it will be in the state of rest unless an external force act on it. Second important है, second इसमें ये है कि if the object is moving, it will be in the state of motion unless no force act on it. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है ना और जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल बाहर से फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल, तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। एग्री एवरीवन? कैसे तनिष? कैसे तनिष? यस योर सर माइंड, हाँ कैसे रे? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ना, हाउ इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन? यस अरे हाउ? कैसे? सर हाँ still not any Sir, no. हाँ, समझ कर यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे। ओके माइक बंद कर, माइक बंद कर तनिष, माइक बंद कर। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, no everyone knows the first statement, that is when the object is at rest it will remain in the state of rest unless the force unless the external force act on it. अभी मैं एग्जांपल दूसरा देता हूं। चलो एक बाइसिकल है, बाइसिकल आप चला रहे हो। अभी बाइसिकल ना एक रब रोड पे है और आप पैडलिंग बंद करो, दैट मीन्स फोर्स बंद करो। पैडलिंग का मतलब फोर्स होता है, यहाँ पे पैडलिंग कर रहे हो। सो बाइसिकल एक रब रोड पे है और आपने पैडलिंग बंद कर दिया।
थोड़ी देर के बाद वो बाइसिकल स्टॉप हो जाएगी, रनिंग बाइसिकल विल स्टॉप, यस और नो? यस, Yes. ओके। Yes. Now suppose you are riding on a bicycle on the smooth road. Now the road is smooth. You stop the pedaling. That means external force is not there. Now bicycle will cover a large distance and will stop. Yes or no? Yes. 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 बोलो ऐसे क्या हो गया? पहले बाइसिकल ने कम डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, दूसरी बार ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, ऐसा क्यों हो गया? Why the distance travel in the first case is Because less? of road. Because of road. Because earlier case, the first case में road is what, rough. In the second case, the road is smooth, na? Yes or no? Yes. Yes. इसका मतलब there is friction between the road and tires and therefore bicycle stop, na? The bicycle stop because of the frictions. Yes or no? Yes. 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 फ्रिक्शंस हो गया एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन न्यूटन क्या बोल रहा है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यदि बाइसिकल और टायर में, बाइसिकल के टायर और रोड में जो फ्रिक्शन है, यदि वो हमने निकाल ही दिया, पूरा निकाल दिया, विल दैट बाइसिकल स्टॉप? No. नो। No. सो हाँ, दिस इज द मीनिंग ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ। न्यूटन बोल रहा है यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है or if the object is in motion, it will continue in the state of rest or motion unless the external unbalanced force act on it. Everyone is clear with this? हर एक को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now देखो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। Balanced force acting on the object, if produce no motion in the object, then it is called balanced force. कौन से भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर the force acting on both side ना, so when the force acting on the object produces no motion in the object, जितना फोर्स ये राइट साइड मैन लगा रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड मैन लगा रहा है ना? So क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes. There is no motion produced in this object. Because of this acting force, no motion is produced. Then the force is said to be balanced. Force acting on the object, if produces no motion. Balanced forces act on the object in opposite direction. बराबर है ना? When the forces are balanced, the forces act on the object in opposite direction. बराबर है ना? Yes. Balanced force may change the shape of the object. बैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब Yes, sir. बैलेंस फोर्स मोशन तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपने स्प्रिंग ले ली और स्प्रिंग को आपने स्पेस कर दिया, सो व्हाट हैपेंस? द शेप ऑफ द स्प्रिंग विल चेंज ना? Yes. यस, बट नो मोशन विल बी प्रोड्यूस। तो ये हो गया बैलेंस फोर्स। अभी अनबैलेंस फोर्स क्या है देखो। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इफ प्रोड्यूसेस मोशन इन द ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। कोई भी ऐसा फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल, suppose you are traveling by a car and the car fails का मतलब यहाँ पे बंद पड़ गई, so you will now push the car from back side, बराबर है ना? Yes. So what is the force that you have exerted is called unbalanced force and the car moves. So unbalanced force act on the object from any one direction. यदि फोर्स अनबैलेंस है तो ये एक ही डायरेक्शन से काम करेगा। ये अनबैलेंस फोर्स कार का किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप नहीं चेंज करेगा, बराबर है ना? बट इट विल प्रोड्यूस द मोशन इन द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करेगा। टेक दिस स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट।
हो गया? Yes, sir. ये भी हो गया? Yes. हाँ, ये भी हो गया। ठीक है। Yes. नाउ द नेक्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे आ रहे हैं मोमेंटम। शायद सुना है, शायद वर्ड आपने मोमेंटम सुना है कभी? Yes. मोमेंटम का हाँ, क्या होता है मतलब मोमेंटम का? Speed. व्हाट? Speed. अरे सुनो, यहाँ पे स्पीड अलग होता है, वेलोसिटी अलग है, मोमेंटम अलग है, सबको सब टर्म एक नहीं है, अलग अलग टर्म है ये। सो ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट। ये मीनिंग समझ, ट्राई टू गेट द मीनिंग, समझ रहा है? हाँ तनिष रीड कर मोमेंटम। So from upside, हाँ अपसाइड ही रीड करना है। हाँ Sir, mass momentum means weight, no? product of mass and velocity of an object. ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ क्या बोला? मास और मीन्स व्हाट? वेट। क्या बोला किसने? Ma- एनीवन Sir, हैज एनी mass means क्वेश्चन? weight, ना? मास और वेट थोड़ा अलग अलग होते हैं, ध्यान में रखो। मास अलग होता है, वेट अलग होता है। मास क्या होता है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जिससे बना हुआ है, दैट टोटल क्वांटिटी को हम मास बोलते हैं। कोई भी एक सब्सटेंस जिससे बना हुआ है उसे मैटर बोलते हैं। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे बना हुआ है ना, वो मैटर के टोटल क्वांटिटी को हम मास बोलते हैं। और वेट क्या होता है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो फोर्स काम कर रहा है ना, उससे उसका वेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अर्थ के ऊपर है तो आपका मास और वेट, जो मास, चलो आपका वेट है ना वो अलग है। और यदि आप मून के ऊपर जाते हो तो वहां पे वेट अलग आता है, मास रिमेन्स द सेम, वही आप है ना। चलो आपका वेट है अर्थ के ऊपर 36 है, हाँ, तो मून के ऊपर आपका वेट ओनली 6 रहेगा। कितना रहेगा? 66. 66 नहीं, 6 रहेगा। अर्थ के ऊपर यदि आप 36 के हो तो मून के Yes, sir. ऊपर आप रहेंगे ओनली 6। 72. अरे काय चाललंय? 6. 6 टाइम लेस। 36 का 6 टाइम लेस क्या होता है? 6. 6 होता है। हाँ, इसका मतलब मास अलग है, वेट अलग है। मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। कोई भी एक मैटर लो, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर उस सब्सटेंस में कितना है वो मास बन जाता है। और उसके ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उससे उसका वेट बनता है। इन शॉर्ट, मास एंड वेट आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। हाँ, सो मोमेंटम क्या है? देखो, द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास है m, द लेटर स्टैंड्स फॉर मास इज m, और वो ऑब्जेक्ट भी इतना वेलोसिटी से मूव हो रहा है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो उसका मोमेंटम रहेगा p इज इक्वल टू m इंटू v। समझ रहे हैं यहाँ पे? मोमेंटम का नॉर्मली मोमेंटम मतलब द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ना, तो उससे कितना इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना आघात हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड इस मोमेंटम। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते पे चल रहे हो और कोई बाइसिकल आके आपको हिट करती है, हाँ, और उसी
स्पीड से आने वाली यदि आपको मोटर बाइक स्पीड करती है तो किससे आपको ज्यादा लगेगा? मोटर बाइक। क्योंकि क्योंकि उसका मोमेंटम वेलोसिटी सेम है लेकिन दोनों का मास अलग है, इसलिए उसका मोमेंटम। सो मोमेंटम का मतलब होता है द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आपके ऊपर जो आघात करता है ना, उसे हम मोमेंटम बोलेंगे। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट इट? क्लियर? यस सर। क्लियर क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे Yes, देखो, sir. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर समझते हैं आपको? वेक्टर का मतलब, वेक्टर का मतलब जिसे डायरेक्शंस होती हैं। मोमेंटम को देखो, यहाँ वेलोसिटी को डायरेक्शन है, इसलिए मोमेंटम को भी डायरेक्शन होती है। सो जिसे डायरेक्शंस होती है ना, उसे बोलते हैं हम वेक्टर। अभी मैंने बोला यदि आप रास्ते पे चल रहे हो और किसी कार ने आपको from suppose the car hits you from back side, so you will have the momentum in the forward direction. आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही गिरेंगे ना? yes or no? यस सर। That means momentum has direction. Momentum has magnitude as well as direction. Magnitude का मतलब होता है उसका एक कीमत। मैंने बोला चलो मोमेंटम 10 मोमेंटम 20 मोमेंटम, सो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सो कार आपको हिट करती है और बाइसिकल आपको हिट करती है, दोनों में इम्पैक्ट अलग अलग होगा बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड मतलब कीमत अलग अलग है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम का डायरेक्शन, आपके ऊपर कार ने हिट कर दिया तो आपको जिस डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा उसी डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी होगी। मैंने बोला कार ने आपको, सपोज द कार हिट्स यू फ्रॉम द बैक साइड, दैट मीन्स यू गॉट द मोमेंटम फ्रॉम द बॉक्स बैक साइड। एंड मोमेंटम का यूनिट देखो, हाउ टू फाइंड द मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम। मास का यूनिट क्या होता है? अरे मास का यूनिट डू यू नो? In SI system, mass is measured in kilogram और मैंने velocity is to be measured in meter per second। यहाँ पे velocity is to be measured in meter per second, mass is to be measured in kilogram। So momentum का यूनिट हो गया किलोग्राम into मीटर पर सेकंड। और इस CGS सिस्टम, छोटी सिस्टम में किलोग्राम का स्मॉल होता है ग्राम, मीटर का स्मॉल होता है सेंटीमीटर, सेकंड का कोई स्मॉल नहीं है। सो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। आप एक काम करो, आपका होमवर्क लीजिए और एक होमवर्क, distinguish between distance and displacement। DISTINGUISH, distinguish between distance and displacement, distance and displacement, speed and velocity, speed and velocity, then define acceleration, define acceleration, और क्या लिखो?
write Newton first law and Newton's चेक करो आपका होमवर्क चैट बॉक्स में देखो distinguish between distance and displacement speed and velocity define acceleration and Newton first law हो गया क्लियर Yes, sir. होमवर्क मिला आपको Sir, please tell again. चैट बॉक्स में मैंने डाला है देखो चैट बॉक्स में देख है ना मिला आपको चैट बॉक्स में Yes, sir. ओके ठीक है स्टॉप हियर हेलो मैडम हेलो हेलो मॅडम Yes, sir. थांबू का मी थांबायचं का तिचा फोन दे बघ. हॅलो हा थांबायचं का मॅडम हो 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 ठीक आहे ओके ओके ठीक आहे